The recording. Okay, beta. So this is regarding the evaluations. So we have 10 marks for your quiz. Okay, this is MCQ. It will be held on 17th April. Okay, then I will give you assignment this Sunday or Monday. Okay, so I'll give you assignment this Sunday or Monday, and its due date will be 24th of April. Okay, so this will also be of 10 marks, right? And then we have lab evaluation, that is also total 20 marks. So you have to submit your lab sheets. I have already told you. So 8 marks for the lab sheets, and there will be a test of 8 marks, that is on 6th May, right? And on the same day when you will be doing your test, I'll take a viva also, that will be for 4 marks. Is this in clear, beta? So in this way we will just do at 40 marks and 60 marks will be left. Any doubts or any suggestions? If you want to change anything, you can also let me know. Okay, fine. Am I audible, Ishangi? Yes, ma'am. Fine. Yeah. Now regarding the syllabus, what we have done and what we are doing further. So I have already told you that in the beginning we have done introduction. Okay, and book is already shared with you, that is your chapter 1. And then we were doing risk-free assets. So these 2 chapters will be for quiz. Okay, quiz will be these 2 chapters. We'll finish this chapter today, and then we'll be starting with the 3rd chapter, that is risky assets. Fine. So here we have in the introduction, we have seen your risk-free assets, and then your risky assets, and then your futures, and then options. So similarly, we have to go. We have studied risk-free assets in detail. Today we'll finish it. Then we'll start with these risky assets, and then we have to study futures and options. Is that okay, beta? So this picture should be clear to you. And so let us start with this risk-free assets, whatever is left, and we'll finish this chapter today, right? Any doubts, beta, from the previous classes or something? Okay. So in this risk-free assets, we are left with something which is called coupon bonds and zero coupon bonds. Coupon bonds and zero coupon bonds. Just a minute. Zero coupon bonds. Anybody having any idea what is a bond? Bond to already we know, right? What is bond? Bond is your risk-free asset. यही तो पढ़ रहे हैं हम तब से. Now can anybody tell me what are coupon bonds and zero coupon bonds? किसी कोई FD कराई है कभी आपने ऑनलाइन? किसी ने? अनिकेत, स्मृति? नो मैम, FD तो है पर वो नहीं है, ऑनलाइन नहीं करेगा अभी. ऑनलाइन नहीं कराई? अच्छा, किसी ने नहीं कराई. वो कहाँ गया? आज सौरभ है ना वो? आज इसने क्लास नहीं लगानी. बेटा देखो, जब आप FD कराते हो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं कि व्हाट यू वांट योर इंटरेस्ट टू बी पेड एट द एंड, और you want in between also, right? So we have this is same thing. Zero coupon bonds are the ones where a single payment is made, a single payment of say rupees or amount F is made at a time T, right? T is equal to say capital T. So this is your maturity time. जैसे आपने FD कराई है, मान लो 5 साल की कराई है. So this is your maturity time, और this is called, जितना आपको maturity पे मिलेगा, that is called your face value of the bond. Okay? तो आपके दिमाग में you can think of a bond as a FD, क्योंकि FD is a bond because it is not risky, it is secured, so it is a bond. And mostly we go for zero coupon bond. इसका क्या मतलब है कि आज हमने पैसा लगा दिया, then we say कि if the FD is for 5 years, then at the end of 5 years we will receive this money
So that money which you receive after 5 years, that is called face value. Is that thing clear? Okay, and then we have this coupon bonds. Coupon bonds क्या होते हैं? इसमें a series of payments C are made during the course of the bond. During the course of the bond. इसका क्या मतलब है कि suppose you have a bond, मान लो आपका 5 साल का bond है. This is T is equal to 0. This is T is equal to 5. 5 साल का bond है, तो एक तो आपको F मिलेगी 5वें साल पे, और इन बिटवीन भी डिपेंडिंग ऑन कि कैसा बॉन्ड आपने खरीदा है, से हमारा एनुअली दिस इज T is equal to 1, T is equal to 2, T is equal to 3, T is equal to 4. So annually also you are getting some money. ये फिक्स होती है C C C C C. So these are called coupon bonds. इसमें क्या होता है कि आपके पास at the end of the 5 years you will get F, which is your face value, plus at the end of every year you will get an amount C. That is called coupon value. So these bonds are called coupon bonds. आपने अगर किसी ने LIC कराई होगी तो आपको शायद पता होगा कि LIC में in between we get something like कि अच्छा इस साल हमें 40,000 मिलने वाला है. Anybody knows this thing? Yes ma'am. After policies में होता है. मतलब उसमें maturity के बिना भी in between also you get certain amount of money. हर policy में नहीं होता, but in some policies. So those policies are actually coupon bonds. Is this thing clear? Is this thing clear? Simple. Zero coupon bond means there is a single payment at the maturity, and coupon bonds means in between also you will get some amount. और ये CV vary करेगा, कितनी बार आपको मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, everything can vary. Fine बेटा, किसी को doubt definition में? Okay, so let us talk about zero coupon bonds first, and then we'll go for coupon bonds. So let us talk about zero coupon bonds first. So what actually happens in the market is कि हमारा हमें ऐसा लगता है कि F face value fixed है, right? और rate of interest भी fixed है, और we can find out कि अगर हमारा suppose T is the maturity time, so can we find out what is the value of the bond today? मतलब आज आप कितना पैसा अपना FD कराओ कि आपको T टाइम बाद F amount मिले, right? So that is very simple. So that you should know what is the interest kind, कि वो continuously interest आपका वो हो रहा है, calculate हो रहा है कि वो हो रहा है आपका periodic हो रहा है, right? So अगर periodic है, suppose you have 1 plus R by M raised to power MT. This is in years. Okay, so M is your frequency, then this is the relation, right? And if you have continuous, then this is the relation. So ये तो आपको already clear है, right? But actual में market में क्या होता है कि F fix होता है, face value fix होती है, उसके बाद market में bonds trade होते हैं, right? So bonds trade होते हैं depending on the demand and supply. V naught decide होता है, V naught is decided. Is this thing clear? F fix है, T fix है. Okay, bond is traded in the market depending on the demand and supply. क्योंकि जो हम bonds कराते हैं वो generally FDs होती हैं, but actually some companies also, in fact most of the companies, they issue their bonds. तो although they are not risky, but फिर भी demand and supply के basis पे उनकी amount, उनकी जो current price है वो decide होता है. So V naught is decided on the basis of the market, and once V naught is decided, we compute, R is computed using star और double star. वहां से हमें पता चलता है कि क्या आपका वैल्यू ऑफ R है. Is that okay बेटा? जैसे FD में तो फिक्स होता है, उसमें R फिक्स होता है. जब R फिक्स है तो आप जितना मर्जी V डॉट कराओ आपको F फिक्स हो जाता है. बट इन एक्चुअल जो कंपनीज के बॉन्ड्स हैं उसमें ये सिनेरियो चलता है कि सबसे पहले बस उसमें F फिक्स होता है कि आफ्टर 5 इयर्स यू विल गेट दिस F अमाउंट. फिर वो बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, डिमांड और सप्लाई के बाद उनकी करंट अमाउंट डिसाइड होती है,
So once V naught is known, F is known, capital T is already known, and on that basis R is decided. Is this thing clear, beta? किसी को doubt? स्मृति, clear है बेटा? No मैम. No के yes? मतलब डाउट नहीं है मैम. अच्छा डाउट नहीं, ओके फाइन. चलो अब हमारे पास we generally denote this B0 मतलब TT, क्योंकि आपके पास ये भी हो सकता है कि मान लो एक बॉन्ड है, सपोज यू हैव अ बॉन्ड, ये आपका T इज इक्वल टू 0 टाइम है, ये T इज इक्वल टू कैपिटल T आपका मेच्योरिटी टाइम है, यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू है, राइट. अगर मैं इसको यहाँ पे खरीदना चाह रही हूँ बॉन्ड को, तो बॉन्ड की वैल्यू इस पे हम डिनोट करते हैं कि बेसिकली हम BTT ऐसे डिनोट करते हैं, वेयर दिस इज योर मेच्योरिटी टाइम, ठीक है, एंड दिस इज अ टाइम एट विच यू वांट टू बाय द बॉन्ड, टाइम एट विच you are purchasing the bond, you are purchasing the bond, right? So this will be your B0T, right? And this is B, यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर खरीद ही रहे हो तो चलो TT लेंगे, यहाँ पे अगर T इक्वल टू T टाइम है तो आपका BTT. Okay, so this is the notation. Is this thing clear? Right? And for simplicity, F is 1 for simplicity. Obviously, you can take anything. इसको F generally लेते हैं कि face value 1 है for calculations. Otherwise, F जो भी होगा बाद में आप put करके अपने formulas accordingly वो कर सकते हो, change कर सकते हो, right? और what will be BTT? Anybody? अगर आपकी compounding हो रही है, periodic compounding हो रही है, periodic annual compounding. So can you tell me what will be the formula for BTT? अनिकेत बताइए बेटा. ये आपका BTT is the price at which you will buy your bond at time T, small t, and F is its value. So what will be BTT? मैम T इक्वल टू 0 पे कुछ इनिशियल वैल्यू होगा B ऑफ 0T और साथ में CC लग रहा होगा T टाइम्स. नहीं, हमें इनिशियल वैल्यू नहीं पता, हमें ये देखो ना, आपको फेस वैल्यू पता है, इसको डिस्काउंट कर दो बस. दैट विल बी F, है ना, 1 प्लस R रेज़ टू पावर माइनस T. ये क्लियर है सबको? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो ना बेटा, यहाँ पे आपने अगर इस अमाउंट में खरीदोगे तो इतने टाइम बाद आपको F मिलेगा. इसका मतलब F इज इक्वल टू BTT 1 प्लस, क्योंकि आपकी पीरियोडिक एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, 1 प्लस R बाई 1 रेज़ टू पावर टाइम. और टाइम कितना है आपका? कैपिटल T माइनस स्मॉल t, right? So from here you get your BTT is equal to F 1 plus R raised to power minus T minus T. Is this thing clear? Okay बेटा. So अगर F1 ले रखा है तो accordingly आपका F यहाँ 1 डाल दोगे, और अगर आपकी कंपाउंडिंग जो है M टाइम्स है तो ये फॉर्मूला अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा. So you will have 1 plus R raised to power minus M T minus T, राइट. और अगर आपकी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F e raised to power minus R T minus T. Is this clear? चलो फटाफट do me this problem. An investor paid $95 for a bond. An investor paid $95 for a bond with face value $100 maturing in 6 months. When will the bond value reach $99? When will the bond value reach $99 if interest remains constant? If our interest rate remains constant. बताओ बेटा फटाफट. समझ आ गया? हम प्रोडिकली है कि कॉन्टिन्यूस है? आपका वही, अगर कुछ नहीं दिया हुआ मतलब एनुअल है आपका, एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल पीरियडिक कंपाउंडिंग. ठीक है बेटा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ ना तो दिस इज द स्टैंडर्ड व्हिच यू विल ऑलवेज अज्यूम इफ नथिंग इज गिवन. ओके. ऑब्वियसली इन द एग्जाम स्पेसिफाई.
कैसे करेंगे बेटा? मैम पहले तो रेट निकाल लेंगे। हाँ बस सिंपल आपने आर निकालना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन्वेस्टर ने $95 दिए हैं, ये फेस वैल्यू आपकी 100 है, सो यू हैव 100 इज इक्वल टू 95, 1 प्लस आर बाई 1 रेज टू पावर 6 मंथ्स में हो रहा है ना, तो क्या हो गया आपका 0.5 ना, तो यहाँ से आपका आर निकल जाएगा 10.80%, right? And then you want to know when will be the bond value reach 99. ये समझ आ रहा है बॉन्ड वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब जिस पे आप खरीद रहे हो, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि कितने की एफडी हम कराएं, ठीक है, मतलब कब ऐसा टाइम आएगा कि हम 99 रुपीज की $99 की एफडी कराएं और आपको जो फेस वैल्यू है उसकी 100 है, समझिए कि ऐसा हो रहा है, ये फेस वैल्यू 100 है, ये फिक्स है, राइट? इससे 6 मंथ्स प्रायर आपको बॉन्ड जो है वो $95 पे मिल रहा है, राइट? एंड वी वांट टू सी कि बॉन्ड कब $99 पे मिलेगा, राइट? ऑब्वियसली दिस अमाउंट की किस पे बॉन्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 100, है ना, ये 100 से कम ही रहेगा. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम, राइट? सो दैट इज सिंपल. 100 is equal to 99, 1 plus r is for half minus t. समझ आ गया ये कैसे किया मैंने, हाफ माइनस टी, क्योंकि ये मेरा कैपिटल टी हाफ मैं एज्यूम कर रही हूँ, इसको मैं 0 एज्यूम कर रही हूँ, t is equal to 0 and somewhere here I am, so this is what I want to compute, btt. okay, so capital T is my half, so यहाँ से निकाल लेंगे आप, your t will be 146.73 days. क्लियर है बेटा? किसी को डाउट इसमें? चले आगे? चलो यस नो डाउट. ओके, सो नेक्स्ट इज ये इसके कूपन बॉन्ड के सिंपल जीरो कूपन बॉन्ड इज लाइक दिस सिंपल, राइट? देन इज कूपन बॉन्ड्स, राइट? सो कूपन बॉन्ड्स आर, I told you that you have a scenario that t is equal to 0 and then t is equal to capital T, right? So यहाँ पे आपका in between, right? Right, so you have C, C, C. Okay, ये अमाउंट आपका पे होगा और एंड में आपको फेस वैल्यू भी मिलेगा, राइट? सो आपका इस केस में आपको अगर आपका निकालना है कि कितने टाइम पे, इस टाइम पे आपका बॉन्ड प्राइस क्या है, राइट? सो वी कैन कंप्यूट लाइक दिस. सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, वहां से हम कंप्यूट करेंगे. फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस ऑफ द बॉन्ड with face value $100 and $5 annual coupons that mature in 4 years, given that the continuous compounding rate is 8%. ओके बेटा, कैसे करोगे? फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद फेस वैल्यू 100, तो आपका 4 इयर्स में आपका मैच्योर हो रहा है. दिस इज t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3, t is equal to 4. so this is your capital T, right? मैच्योर हो रहा है यहाँ पे आपका t is equal to capital 4. और यहाँ पे आपका एनुअल कूपन जो है वो $5 है, मतलब हर साल आपको $5 मिल रहे हैं. Is that okay? Last time, मतलब at the end of the period will also you'll get $5, right? उसके अलावा आपकी जो फेस वैल्यू है 100 है, मतलब यहाँ पे आपको 100 और मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे निकालनी है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है. What is the value of the coupon at this time? बताइए बेटा. आपको दे रखा है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग 8% इंटरेस्ट. क्या आएगा आंसर? मतलब फॉर्मूला बता दो मुझे बस, फाइनल वैल्यू कैलकुलेशंस मत बताओ. कैसे निकालेंगे बेटा? लेट मी आस्क दिव्यांशु, कैन यू टेल बेटा? दिव्यांशु मैम रेट तो इसमें बाद में डिसाइड करते हैं ना. क्या कह रहे बेटा? जैसे ये कूपन वाला आपने बताया था, कूपन बॉन्ड वाला, उसमें कहा था कि रेट बाद में डिसाइड करते हैं ना, पहले वी नॉट निकालते हैं उसमें. नहीं नहीं बेटा, वो मैं कह रही हूँ कि एक्चुअल मार्केट में ऐसा होता है.
ठीक है, कि जब मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग होती है तो इसमें मैं आपको सिनेरियो दे रही हूँ कि आपको ये रेट पता है तो मुझे V नॉट चाहिए, तो यहाँ तो आप फॉर्मूला ही यूज करोगे। वैसे मैं बता रही हूँ कि जब एक्चुअल मार्केट ट्रेडिंग होती है तब पहले V नॉट फाइंड होता है, क्योंकि वो तो डिमांड एंड सप्लाई पे कितनी डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे V नॉट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर R फॉर्मूला से कंप्यूट करते हैं। बट यहाँ पे तो हम क्योंकि वो वाले सिनेरियो नहीं है तो हम फॉर्मूला से ही कंप्यूट करेंगे। तो मैं ये आपको समझ में आ गया। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये बताना है कि इस सिनेरियो में यहाँ मैं कितना पे करूं। At t is equal to 0, how much I should pay so that I get this 555 and this 105 amount of money at t is equal to 1, 2, 3 and 4 respectively. Now do you हाँ BTT is equals to F times 1 plus R वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं बेटा, वो जीरो कूपन है ना बेटा। अब देखो आपने फॉर्मूला मैम इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर पेमेंट की जैसे $5 तो उसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या लेंगे एग्जैक्टली। तो आपको देखो ना, कोई भी पैसा आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो जो भी पैसा है उसकी जो करंट वैल्यू है दैट यू शुड हैव पेड टुडे, है ना, दैट इज द आइडिया। सो यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 1 पे आपको $5 मिल रहे हैं तो इसकी करंट वैल्यू क्या है ये बता दो मुझे अब दिव्यांशु। आज से 1 साल बाद पैसा $5 है तो उसकी करंट वैल्यू क्या है, और कंपाउंडिंग जो दे रखी है वो कंटिन्यूअस दे रखी है 8%। तो इसका मतलब हमारा क्या है, VT इज इक्वल टू V नॉट e raised to power r, r is 0.08 t, this is the formula ना। तो अब हमने इसका $5 टुडे इज इक्वलेंट टू 5 into e raised to power minus 0.08 into t1। क्लियर है बेटा ये चीज? यस मैम। और ये वाला $5 after 2 years is equivalent to 5 e raised to power minus 2 into 0.08 and t is equal to 3 पे $5 is equivalent to 5 into e raised to power minus 3 into 0.08 and 105 at the end of 4 years is equivalent to this. So this is the current value of the bond B0T. Clear? कैलकुलेट कर लेना। समझ आ गया सबको बेटा? This is how you will compute the values of the coupons. Okay, so can you tell me इसका मतलब at t is equal to 0 अगर कोई बॉन्ड ये खरीदना चाहे उसको ये मिलेगा, this is 89.06, 89.06 में ये बॉन्ड मिलेगा। अगर मैं t is equal to 1 पे खरीदूंगी तो कितने में मिलेगा? मैं कभी भी खरीद सकती हूँ मेच्योरिटी से पहले। t is equal to 1 पे पहला जो t equal to 1 पे $5 की अमाउंट वाली है वो माइनस कर दो। हाँ बस ये t is equal to 1 पे मैंने अगर t is equal to 1 पे खरीदा है तो आपका ये वाला अमाउंट आप ये वाला इसका कोई रोल नहीं होगा, राइट? तो आप ये वाला रह जाएगा, ठीक है। और अगर t is equal to 1.5 पे खरीदना चाहूँ मैं इसको, सेम रहना चाहिए, सेम आएगी पक्का? टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, सेम नहीं आएगी ना बेटा, टाइम चेंज हो जाएगा। तो t is equal to 1.5 पे आपका क्या होगा, ये वाली अमाउंट t is equal to 1.5 मतलब here you are buying your bond, so क्या होएगा आपका 5 into e raised to power minus 0.08, यहाँ पे कितना टाइम है 0.5 into 0.5 और यहाँ पे प्लस 5 e raised to power minus 0.08 into 1.5 प्लस 105 e raised to power minus 0.08 into 2.5। क्लियर है ना बेटा ये चीज? Okay, now for zero this non-zero आपको सॉरी कूपन बॉन्ड्स के लिए we have something called coupon rate, right? For coupon bonds we have coupon rates. So what are coupon rates? क्योंकि नॉर्मल बंदे को क्या देखने की आदत है कि हमें ये बताओ कि कितने परसेंट हमें अपनी फेस वैल्यू का सी जो है, अगर आपका जो रेट ऑफ जो आपका कूपन है दैट इज I times F, then this I is called the coupon rate. Fine बेटा? Okay, and generally if V0 is also equal to F, इसमें क्या हो रहा है
कि आपने t इज इक्वल टू 0 पे भी f अमाउंट में बॉन्ड खरीदा और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे भी आपको f में मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको, जो ये कूपन्स मिल रहे हैं. ओके, सो इफ V0 is equal to capital F, then we say that coupon is trading at par. ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कि अगर आपका फेस वैल्यू इज सेम एज द करंट प्राइस. ओके, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए कि अगर फेस वैल्यू और करंट प्राइस सेम है तो हमें क्या फायदा, हमें ये फायदा ना सी 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 हमें मिल रहा है. इज दैट ओके बेटा? इज दिस थिंग क्लियर? सो लेट अस डू वन प्रॉब्लम. यहाँ से आप बताओगे मुझे इसका आंसर. A bond with face value 100, a bond with face value F is equal to 100 and annual coupons C is equal to 8, maturing after 3 years, maturing after 3 years, is trading at par, is trading at par. Find the implied continuous compounding rate. Find the implied continuous compounding rate. ये देखो, ये अब मैंने जो आपको बोला है कि मार्केट में एक्चुअली ऐसे होता है कि जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है दैट विल डिसाइड योर ट्रेडिंग वैल्यू टुडे. जहां पे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग एट पार, मतलब एफ पे ही ट्रेड हो रहा है वो, तो उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है. सिंपल. बताओ आंसर फटाफट सब लोग. बताइए बेटा, क्या सिचुएशन है आपके पास? अनिकेत आप बताओगे? मैम कोई बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 दी है और हर एक साल 8 का कूपन मिल रहा है जो 3 इयर्स के बाद मैच्योर हो रहा है और इसकी ट्रेडिंग एट पार है, तो मतलब वी नॉट एफ के इक्वल है. हाँ, तो आपका V नॉट इज ऑल्सो 100 एंड F इज ऑल्सो 100. तो हमने सिंपल R निकालना है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो वही जो मैंने अभी आपको कराया, राइट? ठीक है, सो आपका क्या है, 8 इंटू ई रेस पर माइनस आर टी प्लस T1 है ना फर्स्ट केस में, 8 इंटू ई रेस पर माइनस 2R प्लस 108 इंटू ई रेस पर माइनस 3R इज इक्वल टू 100. यहाँ से R निकालो. ठीक है बेटा? So this is what was there for आपका risk free assets. So you should be able to do first 2 chapters from the book by now. और वो कर लेना आप लोग, ठीक है? और असाइनमेंट मैं आपको दूंगी अभी, ठीक है? मोस्टली मंडे, संडे या मंडे. ओके, सो इसके बेसिस पे मैं 1-2 प्रॉब्लम्स करा रही हूँ. देन विल स्टार्ट विद रिस्की एसेट्स इन द नेक्स्ट क्लास. ये करिए बेटा सब लोग, बताइए. फाइंड द रिटर्न, फाइंड the return on a 75-day investment in zero coupon bonds if B01 is equal to 0.89. देखो करो सब लोग. I am giving you 5 minutes. You will tell me how to do this problem. This is in years, okay? This one is in years. इसमें आपकी सारा यूज हो जाएगा कि रिटर्न कैसे निकालते हैं और ये जीरो कूपन बॉन्ड का क्या आइडिया है. डूइंग कर रहे हो बेटा?
स्मृति कर रहे हो बेटा? So you are given B01 is 0.89, right? और यहाँ पे आपको अच्छा फेस वैल्यू मैंने दी नहीं ना, फेस वैल्यू 1 है, फेस वैल्यू 1, राइट? सो फेस वैल्यू आपकी 1 है, राइट? सो आपका फाइंड द रिटर्न ऑन अ 75 डे इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आप 75 डेज के लिए इसमें इन्वेस्ट करोगे तो कितना आपके पास रिटर्न आएगा, है ना? सिंपल, यहाँ से आर निकालोगे बस आप, राइट? सो यू हैव B01 is equal to 0.89. So this is actually 1 into आपका 1 plus R raised to power -1 is equal to 0.8. So यहाँ से आपके पास R आ गया आपका 12.36%, राइट? अब आपका रिटर्न क्या होगा? रिटर्न कैसे निकलेगा बेटा? 70 अपने 75 डेज के लिए इन्वेस्ट करना है। बताइए रिटर्न का आंसर क्या आएगा? इसके लिए तो यही कर देंगे ना, B of 0,75 divided by B of 75,1 minus B of 0,1 divided by B of 0,1। क्या क्या बेटा दोबारा बोलना? मैम हमने क्या ढूंढना, हमें B of वो मिल रहा है ना 75,1 वैल्यू मिल रही है ना। हाँ, तो रिटर्न हम कैसे निकालते थे? B of 75,1 minus B of 0,1 divided by B of 0,1। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे मैं B of 75 by 365 1, ठीक है, ये निकाल लूं। दिस इज योर ठीक है, B of 75 by 365, 1 minus B of 0,1 divided by B of 0। Yes. So ये कैसे कंप्यूट करोगे? सिंपल है ना? So you can do this. So this is actually B01 1 plus R raised to power how much? कितना टाइम है? 75 by 365 minus B01 divided by B01। So आपका B01 कैंसिल हो जाएगा, R is known. So this is actually 2.42%. Is that okay बेटा? So this was about risk-free assets. Risky assets भी हम हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट पड़े। So we are going to the next chapter which is risky assets. So risky assets are your mainly stocks, right? तो अभी तक हमारे पास जो था इस कुछ पुराने वाले में बॉन्ड्स थे, कहीं भी आपके पास रैंडमनेस थी। So अच्छा ये बताइए मुझे, बॉन्ड्स जो है उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है? कैन यू टेल मी बेटा? जो रिस्क फ्री एसेट्स पड़े हैं उसमें रिस्क है कि नहीं? बॉन्ड्स में सिर्फ इतना ही कि रिस्क होता है कि अगर बाय चांस वो बैंक ही करप्ट निकले, इन द सेंस वो बैंक ही बंद हो जाए। हाँ, मतलब डिफॉल्ट का रिस्क इज ऑलवेज देयर, है ना? आई हैव टोल्ड यू थिंकिंग दैट देयर आर समथिंग कॉल्ड डिबेंचर्स आल्सो, ठीक है? तो क्या फर्क था बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में? So for example, if a company is issuing a bond of say 1 lakh rupees, so it is bound to save something, some security, उसको उतना रखना पड़ता है। So bonds are in that sense also they are secured. But debentures में क्या होता है कि कंपनी कहती है कि ये रिस्क फ्री है, तो we are issuing like one say they are saying that we are issuing 1 lakh debentures, ठीक है? तो वो रिस्की होती है क्योंकि उतना उसके स्टॉक में उतना मतलब बैलेंस नहीं होता है, तो भी दे कैन इश्यू द डिबेंचर्स। बट बॉन्ड्स के लिए उनको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बट स्टिल the risk of default is always there. So somebody may ask you that what is the risk involved with bonds and debentures? तो debentures में तो चलो अपना रिस्क है ही, bonds में the only risk involved is of default, ठीक है बेटा? Okay, now risky assets. So there are so many risky assets. Can you give me examples? Stocks one, उसके अलावा you have metals, है ना, जिसके बेसिस पे ट्रेडिंग हमारी मेनली होती है। ऑयल, करेंसी, यस, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, करेंसी में बहुत आपका बिजनेस होता है। एंड देन व्हाट एल्स?
मेटल्स, करेंसी और एनीथिंग एल्स? ये कमोडिटीज आपका, ठीक है, व्हीट, राइस, ऑल दीज आर रिस्की एसेट्स, राइट? इन सब के बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग होती है, ओके? सो इसमें से मुझे लग रहा है कि करेंसी जो है और मेटल्स, ये ऐसी है मार्केट्स जो बहुत ज्यादा चैनलाइज नहीं है ना। करेंसी लोकल लेवल पे भी यू सी, बट स्टॉक्स वाली हाईली चैनलाइज्ड है। ऑयल मार्केट इज आल्सो हाईली चैनलाइज्ड। तो जब भी आप कोई कोर्स करोगे ना, यू विल सी मोस्टली they deal with crude oil or they deal with these stocks, right? Because these metals and currency, they are not channelized markets, but these wheat, rice, they are also less channelized because of the local nature of these things. Okay beta? So stock price, अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दी थी, मैंने बोला था कि S0 is known and S1 takes two value, है ना? This is equal to ST if you can say S1 and S2. We have taken these two scenarios only, right? Now, but now we will give a general definition to a stock price. So stock price is a random variable. Now can you tell me what is a random variable? Anybody? Probability पे कोर्स किया है सबने? Probability का कोर्स कर रखा है? किया है कि नहीं बेटा probability? ईशांगी, दिव्यांशु, हाँ probability पढ़ी है बेटा? सेमेस्टर ऑनलाइन हो गया तो थोड़ा ऐसे ही रहा। तो बट ये तो अगर सेमेस्टर ऑनलाइन भी हो, अच्छा ऐसे ही आप मुझे फाइनेंशियल का कहोगे हैं कि हमने पढ़ा तो था बट आता नहीं है कुछ? नहीं मैम, अब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ोगे? अच्छा बेटा, अब तो खत्म होने वाला है। रैंडम वेरिएबल तो पता होगा? प्रोबेबिलिटी में मैं कुछ तो आगे नहीं इसकी वैल्यूज प्रोबेबिलिस्टिक होती मैम आपने कोई रेंज डिफाइन की, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर उठा लिया, जो मतलब अननोइंगली कोई भी नंबर उठा लिया। हाँ ठीक है, बट अगर हम इसको मैथमेटिकली, यू आर गिविंग राइट डेफिनेशंस, बट मैथमेटिकली व्हाट वी से, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आप सबको जो हमने +1 में पढ़ी है वो क्या है कि यू हैव एन एक्सपेरिमेंट, आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यू आर टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है? सो उसका एक सैंपल स्पेस होता है। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? पॉसिबल आउटकम्स, राइट? ये अंडरस्टूड है? यस मैम। ये आपको पता है, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंट, मान लो मेरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, मैंने 2 बार एक कॉइन को टॉस किया, जो आपका अनबाइस्ड है, राइट? सैंपल स्पेस क्या होगा कि आपके पास या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। ये क्लियर है? नाउ देन यू हैव further, you assign one number to each event. You assign one number to each event. For example, I say number of heads. Okay, so here this will go to 2, 1, 1 or 2. This is called a random variable. So आप लोग इसको पढ़ लेना, next class में we'll start from here. Thank you.